Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurabh Gautam. In this video lecture we are going to discuss how we can predict product of electrolysis by using the electrode potential values. Okay, electrochemical series में हमें electrode potentials की वैल्यू मिल जाती हैं, तो उससे हम इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उसकी बात करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल फॉर दिस वी विल टेक एन एग्जांपल electrolysis of aqueous NaCl. Okay, aqueous NaCl arrangement वही है same. You put a battery, you put two electrodes in this aqueous solution of NaCl. Okay, now what are the probable reaction at cathode? What is cathode? The negative end. Okay, the negative end, this electrode is called as the cathode. Okay, what are the probable reactions that can happen at cathode? One is Na positive ion present in the solution get electron and get reduced to sodium ion, and for this the reduction potential, the standard reduction potential is negative 2.71 volt. Okay, you will get this value from the electrochemical series. Okay, and there is the second possibility that water also get reduced by gaining the electron at cathode. Okay, got it? And there is production of hydrogen and hydroxide ion. Clear? And for this reaction there is reduction potential negative 0.83 volt. Okay, it means जितना आपके पास यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल आता है नेगेटिव में, उतना ही वोल्टेज आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अकर दैट रिएक्शन. तो इट मीन्स कैथोड पे इन दो रिएक्शन में, दोनों रिएक्शन ये हो सकती हैं, इन दोनों में से होनी बट एक ही है. एज यू नो दैट कि दोनों में से एक ही होती है, एक जो है वो दूसरे वाला रिएक्शन नहीं होता. ओके, जब हमने कॉम्पीट करने का वाला पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस में. ओके, तो इन दोनों में से अब हमें पता लग गया, इफ़ यू वांट टू रिड्यूस वाटर यू नीड प्लस 0.83 वोल्ट, एंड इफ़ यू वांट टू रिड्यूस सोडियम एंड यू नीड प्लस 0.27 वोल्ट. तो किसके लिए कम वोल्टेज लगेगी? वाटर के लिए. इट मीन्स you will get this reaction done at cathode and Na positive ion will remain at in the solution because Na positive ion is not going to catch cathode. Okay, clear? So this reaction will happen, so H2O gets reduced. Similarly the probable reactions at anode पे कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं? एनोड कौन सा एंड है? पॉजिटिव एंड. क्लियर? एनोड पे क्या है? एक तो क्लोराइड आयन जो NaCl की वजह से बना है. Chloride ion will go at cathode and there is production of chlorine and 2 electrons are released, means oxidation होती है ना anode पे. Okay, so this reaction can be happen. Okay, and if this reaction is happen, then the oxidation potential for this reaction, the oxidation potential for this reaction is negative 1.36 volt. Okay, you will get this value from your electrochemical series. And similarly oxidation of water can also happen and there is production of oxygen plus H positive ion plus release of 2 electron, and for this reaction there is a reduction potential, there is oxidation potential of negative 1 minus 1.23 volt. Okay, but इट मीन्स ऑक्सीडाइज, अगर क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करना है तो आपको बाहर से कितना पोटेंशियल सप्लाई करना पड़ेगा? पॉजिटिव में कर देना ना, क्योंकि बाहर से एनर्जी देने के लिए आप उन्हें साइन रिवर्स करना है. तो बाहर से एनर्जी देने के लिए क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करना है, यू नीड प्लस 1.36 वोल्ट. अगर वाटर को ऑक्सीडाइज करना है यू नीड प्लस 1.34 वोल्ट. इट मीन्स यहाँ से क्या दिमाग में निकल के आता है कि वाटर विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किया गया है? Cl नेगेटिव एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड जब आप करवाते हो. इसका रीज़न क्या है? रीज़न फॉर दिस इज दी ओवर वोल्टेज. ओके, मीन्स वाटर को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन बनाने के लिए ये जो आपके पास गिवन है वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू जो होती है स्टैंडर्ड कंडीशनों में वैसे ये वैल्यू होती है, बट देर इज़ ओवर वोल्टेज दैट इज़ 0.35 वोल्ट. मीन्स अगर ये रिएक्शन करवाना है तो 1.23 वोल्ट तो देना ही पड़ेगा, प्लस आपको 35 वोल्ट साथ में और देना पड़ेगा. इट मीन्स 1.58 वोल्टेज चाहिए अगर आपने ये रिएक्शन करवाना है. तो दोनों में से किस रिएक्शन के लिए वोल्टेज कम चाहिए? क्लोरीन वाले के लिए, इसलिए ये वाला रिएक्शन हो जाता है एट नोड, नॉट दिस वन. ओके, और ये जो ओवर वोल्टेज वाला फिनोमेना है ये आपको हाइड्रोजन गैस के लिए और ऑक्सीजन गैस के लिए देखने को मिलता है. ओके, और ओवर वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि जो आपने यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करे हैं, इन इलेक्ट्रोड्स में कौन सा मेटल यूज़ किया है. जैसे यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आई एम यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स. ओके, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स.
गॉट इट. सिंपल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, नॉट प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में क्या होता है, प्लेटिनम के ऊपर ब्लैक पाउडर्ड प्लेटिनम की कोटिंग भी होती है, उसको बोलते हैं प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड. ओके, क्लियर. अभी हम ओवर वोल्टेज का थोड़ा सा और ओवरव्यू लेंगे. क्लियर. इट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए यू नीड टू, अब आप बोलोगे कि यहाँ भी फिर ओवर वोल्टेज होगा. हाँ, ओवर वोल्टेज होगा, बट ये वैल्यू बहुत ज़्यादा, ये वैल्यू जो सोडियम के लिए है ये बहुत ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू वाटर की रिडक्शन के लिए. तो इसलिए यहाँ पे ओवर वोल्टेज मिला के भी इसी का कम बनता है, इसलिए यहाँ पे H2O की रिडक्शन हुई. अभी हम पढ़ेंगे ओवर वोल्टेज, देन आई विल टेल यू. ओके, क्लियर. और ओवर वोल्टेज वाला कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए आता है. ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न अभी तक तो पता नहीं लगा. ठीक है, बट थोड़ा बहुत रीज़न उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है ओवर वोल्टेज को कि कैसे. हालांकि कोई स्पेसिफिक रीज़न अभी तक साइंटिस्टों को कोई फिक्स रीज़न नहीं मिला इसका. ओके, you can click this screenshot first. Okay, now I am moving to the next topic, that is over voltage, or it is also called as the bubble voltage, and it is only observed for hydrogen and oxygen, not for the other gases. Okay, what is over voltage? Over voltage is the difference between the potential required for the evolution of the gas, गैस निकलने के लिए एक्चुअल में पोटेंशियल कितना चाहिए, एंड इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ओके, और एक्चुअल में उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है. इसका अगर आपने रीज़न थोड़ा बहुत, हालांकि ये प्रॉपर रीज़न नहीं है. ओके, बट अगर थोड़ा सा, अगर मान लो आपने थोड़ा सा रेलेवेंट सा रीज़न देना है, तो रीज़न क्या है, काइनेटिकली द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज सो स्लो. ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की एवोल्यूशन इतनी स्लो होती है कि लो वोल्टेज पे, जो एक्चुअल वोल्टेज होती है, उस वोल्टेज पे आपको एक्चुअल में कोई गैस निकलती हुई दिखती ही नहीं है. तो आपने अगर वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गैस इवॉल्व होते हुए देखनी है, देन यू नीड टू प्रोवाइड अ लिटिल बिट हायर वोल्टेज. ओके, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ओके, इफ़ यू यूज़ प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम, तब तो आपके पास हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो है, जो एक्चुअल में वैल्यू आएगी हाइड्रोजन की. ठीक है, हाइड्रोजन को रिड्यूस करने की या ऑक्सीडाइज करने की, तो वैल्यू वो ज़ीरो ही है. ओके, बट अगर आप आयरन यूज़ करते हो, तब आप उसमें ओवर वोल्टेज की कुछ वैल्यू आ जाएगी, जो एक्चुअल में वैल्यू होगी उसमें आपको 0.08 ऐड करना पड़ेगा. निकल के केस में 0.22 ऐड करना पड़ेगा. अगर आपने जिंक लिया मेटल ऑन द इलेक्ट्रोड, तब आपको 0.70 ऐड करना पड़ेगा. और सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन, ओवर वोल्टेज वैल्यू इज plus 0.25 if you use platinized platinum, and if you use iron, then the value of over voltage is 0.24, and if you use nickel electrode, then the value of over voltage is 0.6 volt. Okay, and this volt over voltage you have to add. Okay, and this is also called as the bubble voltage. इसका कोई एग्जैक्ट कोई मतलब बिल्कुल सटीक रीज़न नहीं हमें पता, बट हाँ, अब कुछ हद तक आप ऐसे बोल सकते हो कि लोअर वोल्टेज पे एवोल्यूशन जो है वो ईजिली ऑब्जर्वेबल नहीं होती. ओके, ऐसे लगता है कि कोई गैस नहीं निकल रही है, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बबल आउट करवाने के लिए गैस को यू नीड टू प्रोवाइड अ लिटिल बिट हायर वोल्टेज. ओके, और वो कितनी वोल्टेज अप्लाई करनी है, दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मेटल यू आर यूजिंग एज द इलेक्ट्रोड. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ओवर voltage, only applicable for hydrogen and oxygen. Okay, so thank you students, and in the next video we will discuss rusting of iron, or you can say corrosion, in the electrochemistry. Okay.